اب بھی وقت ہے پی ٹی آئی غلطی درست کرے، احتجاج کی کال واپس لے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا ایک سیاسی جماعت ایس سی او ناکام بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ کئی سال بعد پاکستان عالمی ایونٹ کی میزبانی کر رہا ہے، ہماری تیاریاں مکمل ہیں، شاندار میزبانی کی ذمہ داری احسن طریقے سے نبھائیں گے۔ پاکستان کے عالمی سطح پر تنہائی کے مفروضے دم توڑ گئے۔ روسی وزیر اعظم نے سائیڈ لائن ملاقات کے لیے وقت مانگا ہے۔ بھارتی وزیر خارجہ کی طرف سے ملاقات کی کوئی درخواست موصول نہیں ہوئی۔ چین کے وزیر اعظم پاکستان کا دورہ کریں گے۔ سوشل، اکنامک، کلچر اور انسانی حقوق کے معاملات بھی ایس سی او ایجنڈے میں ہیں۔ غزہ اور لبنان میں جارحیت کے ایجنڈے پر ایس سی او ہیڈ کی میٹنگ ہو سکتی ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا وزیر اطلاعات عطا تارڑ کے ساتھ شارع دستور کا دورہ، ایس سی او کانفرنس کے حوالے سے انتظامات کا جائزہ لیا۔ مولانا فضل الرحمان نے بھی پی ٹی آئی سے احتجاج مؤخر کرنے کی اپیل کر دی۔ پروگرام سوال یہ ہے میں گفتگو کرتے ہوئے پی ٹی آئی رہنما اسد کیسر نے کہا مولانا نے کہا حکومت سے بات کروں گا، بانی پی ٹی آئی تک ڈاکٹرز کو رسائی دی جائے۔ جیل میں بانی کی صحت پر ہمیں تشویش ہے، کل پارٹی میٹنگ میں 15 اکتوبر احتجاج پر حتمی فیصلہ ہوگا۔ اسد کیسر نے کہا ہمیں مجبور نہ کریں کہ اقوام متحدہ کو لکھیں کہ جبر سے قانون سازی کی جا رہی ہے۔ ہمارے ایم این ایز اپنے تحفظ کے لیے چھپ رہے ہیں، کبھی ایسا دیکھا ہے؟ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر یو این کو خط لکھنے کا بھی آپشن ہے۔ خط والی بات ذاتی رائے ہے، دیوار سے لگایا گیا تو ہم کہاں جائیں؟ بانی سے ملاقات کراؤ، جان چھڑاؤ، غیر ضروری ضد مناسب نہیں۔ ترجمان پی ٹی آئی شیخ وقاص اکرم کا حکومت کو جواب، کہا حکومت کا بانی پی ٹی آئی کو ڈاکٹر اور بہن سے ملنے کی اجازت نہ دینا سمجھ سے باہر ہے، ہمارے خدشات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ پی ٹی آئی کی بانی سے جیل میں ملاقات کی باضابطہ درخواست وزارت داخلہ کو موصول۔ بیرسٹر گوہر اور حامد رضا کی جانب سے بانی پی ٹی آئی سے جیل میں ملاقات کی درخواست کی گئی۔ درخواست میں کہا گیا بانی پی ٹی آئی سے فوری ملاقات کرنے کی اجازت دی جائے۔ آخری مرتبہ ہمارے وکیلوں کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات 3 اکتوبر کو ہوئی۔ شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس کے لیے غیر ملکی وفود کی آمد کا سلسلہ شروع۔ بھارت کا 4 رکنی، روس کا 76 رکنی وفد اسلام آباد پہنچ گیا۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے 7 نمائندے چین، ایران، کرغزستان کے وفد بھی پاکستان پہنچ چکے ہیں۔ ایس سی او کانفرنس 15 اور 16 اکتوبر کو ہوگی۔ غیر ملکی مہمانوں کے استقبال کی تیاری، اسلام آباد کو سجا دیا گیا۔ سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات، پولیس رینجرز کے ساتھ پاک فوج بھی فرائض سر انجام دے گی۔ جڑواں شہروں میں میٹرو بس سروس بند رکھنے کا بھی فیصلہ۔ آئی جی اسلام آباد کا کہنا ہے ایس سی او سمٹ کے لیے جامع اور مربوط سیکیورٹی پلان تشکیل دے دیا۔ اسلام آباد پولیس کے 9000 سے زائد اہلکار فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ چین کے وزیر اعظم 4 روزہ دورے پر کل پاکستان آئیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف، صدر آصف علی زرداری، پارلیمانی رہنماؤں، عسکری قیادت سے ملاقاتیں کریں گے۔ اقتصادی، تجارتی تعلقات اور سی پیک کے تحت تعاون پر بات کی جائے گی۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے چینی وزیر اعظم شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہان اجلاس میں بھی شرکت کریں گے۔ چین کی ترقی دنیا کے لیے مثال ہے۔ چین پاکستان کے توانائی کے شعبے میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کر رہا ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں پاکستان کی معیشت مثبت سمت کی جانب گامزن ہے۔ زر مبادلہ ذخائر میں اضافہ، کرنسی میں استحکام آیا ہے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا کہنا ہے پاکستان کی معاشی بہتری میں چین کا اہم کردار ہے۔ سی پیک کے اگلے مرحلے کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ کراچی میں دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر پولیس کا ایکشن، احتجاج کرنے والوں کو منتشر کرنے کے لیے لاٹھی چارج اور شیلنگ۔ میٹروپول سے ایک شخص کی لاش جناح ہسپتال منتقل، مظاہرین نے پولیس موبائل جلا دی۔ ساؤتھ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے 100 سے زائد مظاہرین کو حراست میں لیا۔ مظاہرین کو منتشر کر کے ٹریفک کی روانی بحال کر دی گئی۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجار نے کہا سول سوسائٹی اور مذہبی جماعت نے ایک ہی دن مظاہرے کی کال دی، قانون ہاتھ میں لینے والوں کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ ریڈ بال میں شکست لگاتار، قومی ٹیم میں بڑی اکھاڑ پچھاڑ، خراب کارکردگی پر سابق کپتان بابر اعظم قومی ٹیسٹ اسکواڈ سے ڈراپ، شاہین آفریدی اور نسیم شاہ بھی ٹیم میں جگہ برقرار نہ رکھ سکے۔
सरफराज अहमद को भी टेस्ट स्क्वाड से रिलीज कर दिया गया। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे और तीसरे टेस्ट के लिए पाकिस्तान के स्क्वाड का ऐलान। कामरान गुलाम, मेहरान मुमताज, हसीबुल्लाह, मोहम्मद अली, जाहिद महमूद और साजिद खान को टीम में शामिल कर लिया गया। कौमी क्रिकेट टीम के बाद पीसीबी में भी सीनियर ऑफिशियल्स की तब्दीली का इम्कान। जराये का कहना है डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट उस्मान बाहला को भी तब्दील किया जाएगा। आमिर मीर को अहम जिम्मेदारियां दिए जाने का इम्कान। पाक इंग्लैंड दूसरा टेस्ट मंगल से मुल्तान में शुरू होगा। टेस्ट मैचेस ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। बड़े खिलाड़ी को ड्रॉप करने का बड़ा फैसला। कप्तानी के बाद बाबर आजम की टीम से भी छुट्टी। पीसीबी का कहना है साबिक कप्तान को आराम दिया गया ताकि मुस्तकबिल में तरोताज़ा होकर मुल्क की नुमाइंदगी कर सकें। बाबर को ड्रॉप करने पर फखर जमान खामोश न रह सके। सोशल मीडिया पर कहा, घबराहट में फैसले करने के बजाय अपने खिलाड़ियों का तहफ़्फ़ुज़ करें। विराट कोहली पर भी बुरा वक्त आया। 3 साल खराब फॉर्म के बावजूद उन्हें बेंच पर नहीं बिठाया गया। मुल्क के बेहतरीन बल्लेबाज को बाहर करने से टीम में मनफी पैगाम जाएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी और सरबरा नून लीग नवाज शरीफ में टेलीफोनिक राब्ता। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो ने नवाज शरीफ को JUI से आईनी तरमीम पर पेशरफ से आगाह किया। 26वीं आईनी तरमीम से मुतालिक इत्तफाक राय पर भी गुफ्तगू हुई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं, हम कभी मनमानी से कानून साजी या आइन में तरमीम नहीं करते। 26वीं तरमीम उजलत में नहीं की जा रही, ये काफी अर्सा पहले होनी चाहिए थी। तारीख इनके लिए नागवार है जो समझते हैं कि पाकिस्तानी सियासत क्रिकेट वर्ल्ड कप से शुरू हुई। जस्टिस दुराव के तजुर्बे ने साबित किया आईनी अदालत मुल्क की जरूरत थी। 18वीं तरमीम में 1973 के आइन की बहाली में 30 साल लगे। मुजव्वज़ा आईनी तरामीम के मुसव्वदे पर इत्तफाक राय के लिए वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की ज़ेर सदारत ज़ेली कमेटी का इजलास। नवीद कमर, बैरिस्टर गौहर, कामरान मुर्तज़ा, अनूशा रहमान की शिरकत। तरामीम से मुताल्लिक़ हुकूमत और दीगर जमातों के मुसव्वदों पर गौर किया गया। ज़ेली कमेटी अपनी सिफारिशात कल पार्लिमानी खुसूसी कमेटी के इजलास में पेश करेगी। आइन से 58(2)B निकला तो अदालती 58(2)B का दरवाजा खोल दिया गया। लीगी रहनुमा SN इकबाल की MQM रहनुमाओं से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा, मुजव्वज़ा आईनी तरामीम के पैकेज से कोई जमहूरियत पसंद इनकार नहीं कर सकता। तमाम सियासी जमातों से मिलकर इत्तफाक राय पैदा करेंगे। MQM से मुजव्वज़ा आईनी तरामीम पैकेज की हिमायत की दरख्वास्त की है। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, मुलाकात में मुजव्वज़ा आईनी तरामीम पर मुशावरत हुई। ज़राए का कहना है MQM ने आईनी तरामीम की हिमायत के लिए बल्दियाती इदारों को इख्तियारात देने का मुतालबा किया। बानी PTI इसराइल गठजोड़ SCO कॉन्फ्रेंस सबूताज करना चाहता है। बानी PTI सियासत नहीं सेहूनी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा, PTI क़यादत मुल्क दुश्मन बैरूनी एजेंडे पर अमल पैरा है। रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, PTI का 15 अक्टूबर का एहतजाज मुल्क के मफाद में नहीं, मुल्क है तो सियासत और जमहूरियत है। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच का कहना है, SCO कॉन्फ्रेंस हुकूमत या पार्टी नहीं कौम के लिए है। PTI एहतजाज की कॉल मुअख्खर करे। मौलाना ताहिर अशरफी कहते हैं, इसराइल और पाकिस्तान दुश्मन शंघाई कॉन्फ्रेंस रोकना चाहते हैं, इसलिए इस्लामाबाद में हंगामा बर्पा किया गया। हमारी पॉलिसी है, हम किसी से सियासी इत्तेहाद नहीं करेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमर रहमान का मौजूदा सियासी सूरत हाल पर अरकान से खिताब। कहा, हमने मुख्तलिफ कौमी इशूज पर दूसरी जमातों से बात की। फलस्तीन पर कॉन्फ्रेंस के लिए हुकूमत से दरख्वास्त की और कामयाबी हासिल हुई। पाकिस्तान के खिलाफ किसी तहरीक का हिस्सा नहीं बनेंगे, चाहे वो पश्तून तहव्वुस मूवमेंट हो या फिर बलोच कौम परस्तों की तहरीक। फाफिर ने आईनी इस्लाहात पर जामे सियासी मुज़ाकरात की तजवीज़ दे दी। कहा, सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह आईनी कमजोरियां हैं जिन्हें फौरी दूर किया जाए। इस्लाहात का फोकस बुनियादी तौर पर पार्लिमानी इख्तियारात बढ़ाने पर होना चाहिए। आईनी अदालतों को अलग करने की दलील पर इत्तफाक राय के लिए जामे नुक्ता नज़र पर जोर देने की ज़रूरत है। आईनी दफातर के सरबराहान की तकर्री में अवामी जांच पड़ताल का फुकदान है। सियासी जमातें ज़ाती और फ़िरका वाराना इख्तिलाफ़ात को एक तरफ रखें। इलेक्शन कमीशन को तमाम आईनी दफातर के इंतखाबात की निगरानी का इख्तियार देना चाहिए। आईन आज़ाद उम्मीदवारों को जीतने के बाद किसी भी जमात में शमूलियत की इजाज़त देता है।
स्टैंड बाय मुआहदे के बाइस पाकिस्तान के करंट अकाउंट खसारे में बड़ी कमी हुई। 9 माह के दौरान महंगाई में कमी का रुझान बरकरार रहा। पॉलिसीज के दिफा से शरह नमू 2.4% तक पहुंच गई। IMF ने गुज़श्ता प्रोग्राम के बाद पाकिस्तान में होने वाली मस्बत मुआशी तब्दीलियों पर रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में कहा गया है सख्त मालियाती और मॉनेटरी पॉलिसी से महंगाई 9.6% तक गिर गई। पाक बहरिया और अमरीकी बहरिया की मुश्तरका मशकों का इनेकाद। बहरा अरब में पाक बहरिया के जहाज PNS बाबर और अमरीकी बहरिया के जहाज USS ओकेन ने मश्क में हिस्सा लिया। बहरी मश्क के दौरान मुख्तलिफ बहरी ऑपरेशन का मुजाहरा किया गया। अमरीकी जहाज के कमांडिंग ऑफिसर ने कमांडर पाकिस्तान फ्लीट रेयर एडमिरल अब्दुल मुनीब से मुलाकात की। ISPR के मुताबिक बहरी मशकें इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाक बहरिया के आज़म की मजहर हैं। पाक फौज का एजाज एक्सरसाइज कैम्डेन पेट्रोल में गोल्ड मेडल जीत लिया। ISPR के मुताबिक एक्सरसाइज बरतानिया वेल्स में 4 से 13 अक्टूबर तक जारी रही, जिसमें 42 मुल्कों की 128 टीमों ने हिस्सा लिया। पाक फौज की टीम ने मश्क में गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहरा करके सोने का तमगा जीता। ISPR का कहना है गोल्ड मेडल कौम और पाक फौज के लिए काबिल फख्र है। पाक फौज ने हमेशा मुल्क का परचम सरबुलंद रखा। रहीम यार खान के कच्चे में पुलिस की टारगेटेड कार्रवाइयां, 63 डाकू हलाक, 45 जख्मी। तर्जुमान पंजाब पुलिस का कहना है पुलिस ने कच्चे के इलाके में पक्की चौकियां कायम कर ली हैं। सादिकाबाद के कच्चे में 50 से जायद मोर्चे खाली, कोई पुलिस एहलकार मौजूद नहीं। वीडियो सामने आ गई। कराची वाले सबसे महंगा आटा खरीदने पर मजबूर। 2 हफ्ते में 1 किलो आटा 10 रुपए तक महंगा हुआ। शहर कायद में आटे के 20 किलो थैले की कीमत 2200 रुपए तक जा पहुंची। इदारा शुमारियात का कहना है हैदराबाद में 20 किलो आटे के थैले की कीमत 2000, लाहौर और फैसलाबाद में कीमत 1700 रुपए तक है। लेबनान में हिजबुल्लाह का इसराइल को गहरा जख्म, झड़पों में 25 इसराइली फौजी जख्मी, मुताद्दिद की हालत तशवीशनाक। जनूबी लेबनान में इसराइली फौज के हमले में 15 अफराद शहीद हो गए। बैरूत में इमारतों के मलबे से 17 लाशें निकाली गईं। इसराइल का लेबनान की सरहद पर ममनुआ क्लस्टर बमों का इस्तेमाल। इसराइली फौज 3 रोज से अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन को भी निशाना बना रही है। नेतन्याहू की झिटाई, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को पैगाम दिया कि अमन फौज लेबनान से निकाल लें। बॉलीवुड दबंग खान के दोस्त बाबा सिद्दीकी को मुंबई में कत्ल कर दिया गया। बाबा सिद्दीकी को बेटे के दफ्तर के करीब गोलियां मारी गईं। पुलिस ने 2 अफराद को हिरासत में ले लिया। डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार कैमला हैरिस का ट्रंप पर मेडिकल रिकॉर्ड छुपाने का इल्जाम। कहा ट्रंप अमेरिकी सदारत के लिए किसी तौर पर मौजूद नहीं है, वो मेडिकल रिकॉर्ड छुपा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जो बाइडेन उन्हें कैमला हैरिस से ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि कैमला ने उनकी जगह ली है। ट्रंप का इंतखाबी मुहिम के दौरान फौजी तैयारों के जरिए सिक्योरिटी का मुतालबा। लेजेंडरी अदाकार आबिद कश्मीरी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। मारूफ फनकारों और मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद की शिरकत। आबिद कश्मीरी ने सैकड़ों टीवी ड्रामों, स्टेज और फिल्मों में काम किया। विमेंस T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड मध्य मुकाबले। दूसरा मुकाबला भारत और ऑस्ट्रेलिया का होगा। गुज़श्ता रोज न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका ने अपने मैचेस जीते। तमाम मैच ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। रियाद सीजन बॉक्सिंग चैंपियनशिप रूसी बॉक्सर आर्टर ने हमवतन हरीफ दिमित्री को पछाड़ दिया। बॉक्सर आमिर खान भी मुकाबला देखने पहुंचे। आर्ट्स काउंसिल कराची में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जारी। आज डांस इवेंट में मुख्तलिफ ग्रुप फन का मुजाहरा करेंगे। गुज़श्ता रोज म्यूजिक का तड़का, एक तरफ गाने दूसरी तरफ पंजाबी भंगड़े डाले गए। सुरों के सुल्तान उस्ताद नुसरत फतेह अली खान का 76वां यौम पैदाइश। फन कव्वाली को नई जहतों से रोशनास कराया। उनके गाए हुए गीतों और कव्वालियों ने दुनिया भर में शोहरत हासिल की।